Hello guys, we are studying some basic concepts of economics, and here is the next part of the basic concepts. So what is the export duties? Basically export duties means duties applied on export, that is taxes imposed on goods that are exported from a country. So whatever we export to another countries, we impose some kind of taxes on that, and that is called as export duties. So here duties word is similar to what taxes you have to keep in mind, because whenever the question comes in examination, students get confused between these two words, duties and taxes. So more or less it is the same. The only difference is that when we impose taxes on exports, it is called as export duties. What is export promotion? Now this is related to export, everything. Export duties, export promotion. Promotion means what actually? All of the measures, including fiscal and commercial support measures and steps at removal of trade barriers. ट्रेड बैरियर्स, तो जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं जिससे ट्रेड जो है वो कम होता है या उसको उसमें ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, उसको रिमूव करना. सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ड्यूटीज, रादर export promotion. Fine. So by a government to promote the export of goods within a view to achieve higher economic growth and accumulation of foreign exchange earnings. Why do we go for export, or why do we promote export? The reason is quite simple. There are two purposes for the same, that is to achieve higher economic growth. Number one, to achieve higher economic growth, and second thing is that nothing but earning forex, that is earning foreign exchange reserves. So that is one of the best rather main motive of export promotion. Next is export import policy. It is also called as EXIM policy. Now what is EXIM policy? The policies of government related to the export and import of goods and services. In a layman's term, what is export? Export is that goods or services what we offer to or what we trade with other countries, that is called as export, and goods and services what we import from other countries, that we call as import of goods and services. So this export and import policy nowadays it is called as a foreign trade policy rather than EXIM policy. Earlier it was called as export import, that is EXIM policy. Now government of India has made its nomenclature as a foreign trade policy, right? Next, फैमिली लेबर और वर्कर किसे कहा जाता है? फैमिली लेबर या वर्कर. ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है. अ मेंबर हु वर्क्स विदाउट रिसीविंग वेजेस इन कैश और इन काइंड इन अ फार्म, इंडस्ट्री, बिजनेस और ट्रेड. लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी हाउसवाइफ है, वो घर पे काम कर रही है तो उसको तो पैसा नहीं मिल रहा है, राइट? वो कैश में भी नहीं मिल रहा है या किसी चीज़ कोई चीज़ भी उसको दी नहीं जा रही है. So that is called as a family labor or a worker. Fine. Financial institutions. What is financial institutions? So institutions that engage in mobilization and allocation of savings. Two things, mobilization and allocation of savings. These are the keywords that should be in your answers in mains examination also, right? So what is mobilization? That collecting the money is called as mobilization. And then allocation is what actually? Distributing the money is called as an allocation. So allocation of savings and mobilization and allocation of savings, that is the work of the financial institutions. They include commercial bank, cooperative bank, developmental bank and investment institutions. तो जितने भी सारे आपको जो पैसा जमा करके लोन बांट रहे हैं, वो जितनी भी संस्थाएं आपको दिखेगी, वो सारी हैं financial institutions में आ जाएगी. Fine. Next, fiscal management. This word is very, very important. Whenever any candidate who is going to prepare for civil services examination, that you should always focus on these kind of words or terminologies in economics. So use of taxation and government expenditure to regulate economic activities. So whenever we use the word is fiscal, we go for taxation and expenditure. Right? Why? To regulate economic activities, and that is called as fiscal management.
मॉनेटरी मैनेजमेंट विल बी द अनदर वर्ड और अनदर कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ। मॉनेटरी मैनेजमेंट क्या होता है और फिस्कल मैनेजमेंट। मॉनेटरी मैनेजमेंट इज व्हाट एक्चुअली इट इज डन बाय आरबीआई, फाइन, एंड फिस्कल मैनेजमेंट इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज बाय आरबीआई। तो जब भी कभी आपको मॉनेटरी शब्द का इस्तेमाल दिखाई देगा तो आपको ध्यान में रखना है कि ये आरबीआई से संबंधित है, और जब कभी भी फिस्कल वर्ड है तो भारत सरकार के संबंधित है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित है, फाइन। दैट इज फिस्कल मैनेजमेंट। नाउ फिस्कल पॉलिसी, अगेन वही बात आ गई फिर। अभी अभी मैंने बताया आपको कि जब कभी भी फिस्कल वर्ड का आपको जिक्र होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी देयर। सो फिस्कल पॉलिसी मीन्स पॉलिसी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइन। तो शब्दों को समझना है दोस्तों, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक्स में आपको कोई इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो शब्द है वो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ऑल द प्लान्ड एक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस फॉर मीटिंग इट्स expenditure and regulating the economic activities. All the planned actions of a government of mobilizing financial resources. So fiscal policy is mobilization of financial resources. तो आप बोलोगे वापस सर मोबिलाइजेशन आ गया। मोबिलाइजेशन का मतलब हमने देखा कि इस कलेक्ट करना, राइट? तो जो पैसा जमा करना है टैक्सेशन के माध्यम से, सो ये प्लान्ड एक्टिविटी एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट है इन मोबिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस। व्हाई डज गवर्नमेंट मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेस? व्हाई? आप क्यों पैसा कमाते हो, मैं क्यों कमा रहा हूँ? वजह क्या है? मीटिंग इट्स एक्सपेंडिचर, राइट? तो हमारा खर्चा भी तो हमें उसमें से निकालना होता है, दैट इज व्हाई इट डज, एंड दैट्स हाउ गवर्नमेंट रेगुलेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कॉल्ड एज अ फिस्कल पॉलिसी. Fine. Next concept is foreign direct investment. This term is quite often in the news and quite popular in terms of or in the era of UPSC examination. So what is exactly it? FDI. It is investment of foreign assets into domestic structures, equipment and organization. तो basically कोई भी बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे आ रही है, किस माध्यम से? कोई स्ट्रक्चर में है, इक्विपमेंट में है, कोई प्लांट में है, मशीनरी में है, उसे एफडीआई कहा जाता है. इट डज नॉट इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू द स्टॉक मार्केट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एफडीआई में क्या नहीं आता है? तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एफडीआई में नहीं आएगा. आपको इस बात का ध्यान रखना है. फाइन. नेक्स्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज थॉट टू बी मोर यूजफुल टू कंट्री देन इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी ऑफ इट्स कंपनीज बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर पोटेंशियली हॉट मनी. इक्विटी इन्वेस्टमेंट कॉल्ड एज हॉट मनी. एक बहुत ही अच्छी टर्म आपको यहाँ पे मिल गई. व्हाट इज हॉट मनी? आपको पूछा जा सकता है. तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, स्टॉक मार्केट में जो पैसा फॉरेनर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है या उसको इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट. आप इस बात को ठीक तरह से समझिएगा. अब ये जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ये हॉट मनी क्यों कहलाई जाती है? विच कैन लिव एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, राइट? वाई इट इज टर्म्ड एज हॉट मनी? स्टॉक मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हॉट मनी क्यों बोला जाता है? जो फॉरेनर्स द्वारा खास करके होता है. तो जब कभी भी स्टॉक मार्केट के हालत खराब हो गए, इकोनॉमी के हालत खराब हो गए, तो ये लोग पहले होते जो पैसा निकाल लेते हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज हॉट मनी. वेयर एज एफडीआई इज ड्यूरेबल. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे यहाँ पे है वैसे का वैसे सवाल पूछा गया है पीवाईक्यूज में. तो एफडीआई जो है वो ड्यूरेबल होता है एंड जनरली यूजफुल वेदर थिंग्स गो वेल और बैडली. तो कोई भी हालत हो, मान लो कि कोई एयरपोर्ट में यहाँ पे किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है कोई फॉरेन कंट्री में, अब कितने भी हालत खराब हो जाए तो वो एयरपोर्ट तो उठा के नहीं लेके जाएंगे, राइट? सो दैट इज स्टेबल इन्वेस्टमेंट, ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट. एफडीआई इज ड्यूरेबल देन स्टेबल. This is more important or more useful for economic growth. Why? Gives impetus for employment generation. It gives impetus for employment generation. तो employment generation को भी इससे काफ़ी बढ़ावा हो जाता है. इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है. एफडीआई को हमने समझा
हॉट मनी को हमने समझा, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इकोनॉमी के यहाँ पे हमें समझ में आ गए। एक है एफडीआई, दूसरा है हॉट मनी, जो कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है बाहर से, उसे हम हॉट मनी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहा जाता है? इसको और भी एक इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेक्स। अब मैं इसकी बात छेड़ी है तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और बोलूँगा कि फॉरेक्स क्या होता है। तो फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट इज अ करेंसी और बॉन्ड्स ऑफ अनदर कंट्री। तो कोई भी देश है तो उसकी जो करेंसी है इसको फॉरेक्स बोलते हैं। लाइक मान लीजिए डॉलर है, येन है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, राइट, चाइनीज रेनमी है, दीज आर कॉल्ड एज द फॉरेक्स। तो हमारे पास ये पैसा होता है। फॉरेक्स में क्या क्या चीज़ें होती है? भारत की फॉरेक्स की अगर हम बात करेंगे तो 3-4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो एफसीए होता है, एफसीए मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी सवाल पूछा जाता है कि भारत का जो टोटल फॉरेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलता है या क्या दिखाई देता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में फॉरेक्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स दैट इज एफसीए हैं एक। नंबर 2, आरबीआई के पास कुछ गोल्ड है, वो भी इसमें आ जाता है। नंबर 3 रिजर्व ट्रैंकी पोजीशन एट आईएमएफ, आईएमएफ के पास हमारा कुछ रिजर्व पैसा है, वो है। एंड चौथी बात होती है इसमें, दैट इज एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स, विच इज कॉल्ड एज पेपर करेंसी। इसको कहा जाता है पेपर करेंसी भी कहा जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस प्रीलिम्स में एकदम सिंपल सवाल आ जाता है, व्हाट इज फॉरेक्स? फॉरेक्स में क्या क्या आता है? नंबर 1 फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड एट आरबीआई, ऑब्वियसली एट आरबीआई, आरटीपी एट आईएमएफ, आरटीपी मतलब रिजर्व ट्रैंकी पोजीशन, ओके, वो रिजर्व मनी है। एंड एसडीआर इज स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेपर करेंसी, और इट इज rather than paper currency called as a paper gold, created in 1969. It is an unit of international currency, okay, or international unit of currency. International unit of currency, fine. तो ये होता है फॉरेक्स में। So what forex comprises of? We have studied it already. फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, राइट। तो फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई भी बाहर की करेंसी जो है वो उस मात्रा में जो पैसा हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज, फाइन। नेक्स्ट कंसेप्ट अब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये वो मार्केट है जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को उसको सोल्ड किया जाता है या सेल किया जाता है या बाय किया जाता है, खरीदना या बेचना फॉरेन करेंसी को। जिस मार्केट में फॉरेन करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है तो उसे कहा जाता है, या एक्सचेंज किया जाता है तो उसे कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, अब ये क्या होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट? इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच कम इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर फिनेंशियल एसेट्स। तो स्टॉक में, बॉन्ड्स में जो पैसा हमारे पास आता है तो इसे कहा जाता है FII, ओके। दिस फॉर्म इन्वेस्टमेंट डज नॉट entail एक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल ओवर फर्म्स। तो ये FDI में और FII में फ़र्क है। ये जो इन्वेस्टमेंट है FII वाला, इसमें कोई प्रॉपर्टी जो है उसकी ओनरशिप इन्वेस्टर के पास नहीं जाती। वाइस वर्सा FDI में कंट्रोल और ओनरशिप जो है उसका शेयर भी इन्वेस्टर के पास होता है। ये मेजर डिफरेंस FDI में और FII में। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होता है? FIIs, banking and non-banking financial institutions of foreign origin, that is commercial bank, investment bank, mutual funds, pension funds or other such institutional investors. They are called as foreign institutional investors. वही जितने भी financial institutions भारत में हैं वैसे ही बाहर के institutions, चाहे वो banking वाले हो या non-banking वाले हो, right? तो सारे जो लोग हैं वहाँ पे हमारे भारत में इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, उनकी इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फाइन। नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन मेजर्स। तो सरकार द्वारा या आरबीआई द्वारा, अब सरकार द्वारा जो मेजर्स, जो कदम उठाए जाते हैं
that is called as fiscal measures. Fiscal measures are the actions by the deliberate actions by the government of India, and monetary measures, that is deliberate actions by the RBI adopted to control fluctuations in the balance of payment. BOP जो है हमने शुरुआत में देखा है कॉन्सेप्ट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबलाइज करने की कोशिश, उसमें जो फ्लक्चुएशंस है उसको रोकने की कोशिश, उसको स्थिर करने की, स्टेबलाइज करने की कोशिश जो की जाती है बाय आरबीआई एंड फिस्कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है. अब मॉनेटरी मेजर्स इज फॉर टेमिंग इन्फ्लेशन, इसको जो है इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फाइन. देन अब ये जो है भारत सरकार जो कदम उठाएगी और आरबीआई जो कदम उठाएगी, कुल मिला के इसे कहा जाता है स्टेबलाइजेशन मेजर्स. रिमेंबर केयरफुली, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. हमने लास्ट लेक्चर में एसएलआर सीआरआर के बारे में बात की थी, राइट. तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में इनमें हमेशा सवाल बैंकिंग में पूछे जाते हैं. इट्स अ मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स एंड रिजर्व टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक्स इन द लिक्विड फॉर्म एज पर द रेगुलेशंस ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई. आरबीआई का मानना है जितने भी बैंक बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने सारा जो पैसा उनके पास डिपॉजिट जमा हुआ है, जितना भी रिजर्व है, सबके सब लोन्स के माध्यम से नहीं बेचना है, तो उनको नहीं देना है. क्या करना है, तो कुछ मात्रा में पैसा अपने पास, खुद के पास लिक्विड फॉर्म में रखना है. एसएलआर, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एसएलआर एंड सीआरआर. एसएलआर में जो पैसा, दो डिफरेंस है, व्हाट इज एसएलआर एंड व्हाट इज सीआरआर. फाइन. तो पहला डिफरेंस, एसएलआर हैज टू बी केप्ट विथ द बैंक इटसेल्फ. सेकंड, इसमें यहां पे सीआरआर हैज टू बी केप्ट with RBI by the bank. Okay. Number 2, SLR has to be kept in the form of liquid only. CRR has to be kept in the form of cash only. तो ये दो फर्क है, अपने आप को समझ में आ रहा है. थर्ड डिफरेंस अभी क्या है इसमें, तो SLR एग्जैक्टली क्या है, मेंटेनेंस ऑफ SLR इन एडिशन टू द CRR इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द बैंक. हमने देखा, अभी मैं उस पर बात कर रहा था, तो आपको दोनों चीजें समझ में आ गई. ये दोनों भी जो है क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई. सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन द न्यूज. फाइन. नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज किसे कहा जाता है, तो आपने वो स्कैम 1992 वेब सीरीज देखी होगी, हर्षद मेहता एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट. तो ये सारा जो है स्टॉक मार्केट, basically it is a market in which the securities of the government and public companies are traded. तो व्यापार चलता है वहाँ पे, शेयर का व्यापार चलता है. So share market or stock market, also called as in a layman's language share market. It provides the facilities for stock brokers to trade company stocks and other securities. तो जितना भी लेन देन चलता है वहाँ पे वो है शेयर मार्केट का लेन देन, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन, स्टॉक्स का लेन देन चलता है. फाइन. स्टॉक मार्केट अभी इंस्टीट्यूशन वेयर स्टॉक्स एंड शेयर्स आर ट्रेडेड. फाइन, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज, अब नाम से ही सुनाई देता है, जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा इसमें एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है. व्हाट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, द लॉन्ग टर्म मेजर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म मेजर्स. तो जल्दी नहीं हो पाएंगे, समय लगेगा. लाइक लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. तो तीन चीजें हैं यहाँ पे. लिबरलाइजेशन ये लॉन्ग टर्म मेजर है. तो भारत ने जो 1991 में एलपीजी मॉडल को एक्सेप्ट किया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया था, उसके तहत लिबरलाइजेशन नाम की एक चीज थी, कॉन्सेप्ट थी. लिबरलाइजेशन, सेकंड डीरेगुलेशन, दूसरी बात है डीरेगुलेशन, एंड थर्ड है प्राइवेटाइजेशन. तो ये सारा जल्दी थोड़ी हो पाएगा, एक आज आपने कदम उठाया कल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है. तो दैट रिक्वायर्स टाइम एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज. ओके. जो इमीडिएटली होता है उसको कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. आई रिपीट, जिसके लिए समय लगेगा उसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज. इट रिक्वायर्स टाइम्स, इट रिक्वायर्स टाइम. whereas macroeconomic stabilizations have to be done immediately, right?
एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी, इफिशियंसी वगैरह ये सारी चीजें अपने आप, जब इकोनॉमी की बात चलती है तो ये चीजें आनी है। इफिशियंसी चाहिए, मेरिट चाहिए। देखो जिस जमाने में हम लोग जी रहे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और एलपीजी का जो एरा है, अब एलपीजी को अडॉप्ट करके 1991 में अडॉप्ट किया गया, उसको हो गए लगभग अभी ये 20 और 30 साल से ज़्यादा पीरियड होगा। ये जो 30 साल के बाद जो हम जो जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स कहा जाता है जिसे, उसमें काम कर रहे हैं, उसमें जी रहे, ये ज़माना वो ज़माना है जिस ज़माने में इफिशियंसी की बात चलेगी। आपके पास इफिशियंसी नहीं है, यू विल बी रूल्ड आउट। कॉम्पिटिटिवनेस, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए और सर्विस की तुलना में उसकी रेंज अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप उसको मार्केट मिलेगी। मेरिट होनी चाहिए आपके पास। तो देखो ये चीज़ें आपके पास अगर नहीं है तो ये जो मार्क्स जैसे कहता है कि इकोनॉमी इज द बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, तो बाकी ऑनेस्टी आपके पास है, ये है वो है, जो सोशल वैल्यूज है तो वो आप तय करो कि वो आपके पास वो है, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है तो मार्केट में आपको कोई डिमांड नहीं होगा ऑब्वियसली। वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज, so that requires time to adopt and to implement and to make changes. Those are called as the structural reform policies like liberalization, deregulation and privatization. Fine. Next, टैरिफ किसे कहा जाता है? टैरिफ बेसिकली एक टैक्स ही होता है, पर वो कौन सा टैक्स होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट विच कैन बी लेविड आइदर ऑन फिजिकल यूनिट्स और टू रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम सब्सिडाइज्ड। देखो इसको ठीक तरह से समझेंगे हम। टैक्स ऑन इंपोर्ट, ये तो इसका एकदम बेसिक डेफिनेशन होगा। जितनी भी चीजें हम बाहर के राष्ट्रों से, बाहर के कंट्रीज से मंगवाएंगे, उस पर हम लगाएंगे इंपोर्ट, विच कैन बी लेविड आइदर ऑन फिजिकल यूनिट्स पर टन और ऑन वैल्यू। तो दो चीज का टाइप, वैल्यू टैरिफ भी होता है, नॉट नेसेसरी कि पर टन या उसके वॉल्यूम पे ही रहेगा, वैल्यू पे भी रहेगा। टैरिफ में भी इम्पोज फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से टैरिफ को इम्पोज किया जाता है। क्या क्या वजह है? टू रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, सरकार का रेवेन्यू बढ़ाना है। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम सब्सिडाइज्ड और लो वेज इंपोर्ट, तो भारत सरकार की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको सब्सिडाइज करना है या उसको जो है प्रोटेक्ट करना है। टू बूस्ट डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए भी कार्य किया जाता है। टू ईज अ डिफिसिट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने देखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसको कम करना है, इसलिए हम फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ लगाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू दैट देयर इज टैरिफ अचीव लिटिल गुड, दे रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी टू कंज्यूमर्स। ये ध्यान में रखो, इससे दो वजह है। फायदे तो होते हैं, रेवेन्यू मिलता है सरकार को, नुकसान क्या है? टैरिफ जो है रिड्यूस इंपोर्ट, तो बाहर से अगर हम टैक्स लगाएंगे इंपोर्ट पे ज़्यादा तो निश्चित रूप से जो बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज जो लोग हमें इंपोर्ट कर रहे हैं उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, दैट it may raise the price, it may increase the price of the commodity, imported commodity। तो वही जो इंपोर्ट कम हो गया तो उसकी प्राइस बढ़ गई, प्राइस इंक्रीज होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ टैक्स ही है बेसिकली, बस इतना ध्यान में रखो। तो कौन सा टैक्स है कि डोमेस्टिक टैक्स नहीं, वो इंटरनेशनल टैक्स है। बाहर से जो इंपोर्ट हम करवाएंगे उस पर जो टैक्स लगेगा दैट इज टैरिफ। What is tariff barriers? All the restrictions on import. Restrictions on import by the government in the form of taxes. जितने भी गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी इंपोर्ट पे, that is called as tariff barriers. Fine. ट्रेड यूनियन बहुत ही सिंपल है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हम ट्रेड यूनियन देखते हैं। That is an organization of workers formed for the purposes of addressing its members' interest and respect of wages, benefits and working condition. तो ये जो है जितनी भी संगठनाएं होती है, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन है, कॉल्ड एज ए ट्रेड यूनियन। अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें दो ध्यान में रखो, ये कंसेप्ट क्या है? एक विलिंग टू वर्क, देन कैपेसिटी टू वर्क। कोई बंदा है जिसकी काम करने की इच्छा है, उसकी काम करने की क्षमता भी है, लेकिन
उसको काम नहीं मिल रहा है, बट अनेबल टू फाइंड वर्क, उसको काम ही नहीं मिल रहा है, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट। सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओविंग टू लैक ऑफ वर्क not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making application to the prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing condition of work and remuneration। बहुत ही सिंपल है, यही बताया मैंने। डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो आपको इतना ध्यान में रखना है, अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क, ही हैज अ कैपेसिटी टू वर्क बट ही इज नॉट एबल टू फाइंड वर्क प्रॉपरली, देन ही इज कॉल्ड एज एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। इसमें बहुत सारे टाइप्स भी हैं, वो जैसे टॉपिक को हम आगे आगे पढ़ेंगे हम इसमें देखेंगे। अर्बनाइजेशन, व्हाट इज अर्बनाइजेशन? बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, namely the proportion of total population or area in urban localities, cities or towns, or the increase of the proportion over time. It can thus represent a level of urban population relative to total population of the area or the rate at which the urban proportion increasing। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, इतना सारा नहीं देखा आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्बनाइजेशन ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पे क्या क्या हमें दिखाई देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिटीज़ और टाउन्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया, कॉस्मोपॉलिटन एरिया, सारा ये अर्बनाइजेशन में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या फ़ायदा होता है रूरल एरिया से? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, बिजनेस एंगेजमेंट ज़्यादा होता है, ये सारा है। फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज फॉर्मल सेक्टर। सो ऑल द पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट एंड दोज प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉयड 10 और मोर हायर्ड वर्कर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 या 10 से ज़्यादा लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। ओके, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उससे कम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट? जो ठेला लगाते हैं, राइट। दूसरी बात होती है वो जो चाय बेच रहे हैं, 1-2 बंदे काम कर रहे हैं, तो उसे हम अब धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं वो चाय का चेन बन रहा है, तो आउटलेट बन रहे हैं, वो वहाँ पे जो फॉर्मल सेक्टर बन रहा है कुछ उसमें से। तो बस ध्यान में रखो कि 10 या 10 से ज़्यादा लोग जहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड एज अ फॉर्मल सेक्टर। G20 नाम करके एक चीज़ है। G20 में क्या है? फोरम ऑफ कंट्रीज दैट इंटेंड टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये 2 कीवर्ड है। वाई G20 वॉज फाउंडेड, वाई G20 वॉज एस्टेब्लिश्ड to promote global economic stability. This forum brings together finance minister and central bank government from 19 countries. तो G20 19 प्लस EU, यूरोपियन यूनियन, तो ये कुल मिला के हो गए 20। ये भैया 90 कंट्रीज यहाँ पे लिखे हैं, भारत इसका मेंबर है क्या? यस। इस साल तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चर्चा में है, इसकी वजह से इसकी प्रेसिडेंसी हमें मिल गई है। इंडिया is a president of this group G20 in 2023 2022-23 में भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। ओके, यूरोपियन यूनियन इज आल्सो मेंबर ऑफ G20 रिप्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड हेड ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? तो यूरोप के कुछ ऐसे राष्ट्र जिन्होंने अपना खुद का एक संघ बनाया जिसमें से बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट रहेंगे फॉर द ग्रोथ ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। फॉर दैट मैटर यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड एंड सो G20 इज बेसिकली मेंबर कंट्रीज, 19 मेंबर कंट्रीज एंड 1 EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन। फाइन, नेक्स्ट। अब ध्यान में रखो कि भारत इस साल इसका अध्यक्ष है। G8, व्हाट इज G8? The group of 8 consists of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, Great Britain, and Northern Ireland, the USA, and the Russian Federation. That is G8. अब ये कभी कभी G8 होता है, कभी कभी G से होता है, रशिया को निकाल दिया। Fine. Hallmark of the G8 is an economic and political summit. Okay. Meeting of the heads of the government within the international officials. Though there are numerous subsidiary meetings and policy research, presidency of the group rotates every year. Like G20, this presidency also rotates every year.
फॉर द ईयर 2006 इट वाज हेल्ड बाय रशिया। ये कोई ज़रूरी नहीं आपके लिए। अब देखो इसको, फिलहाल ये है G7, तो रिच कंट्रीज एक्सेप्ट, आप बोलोगे G8 में कौन नहीं है अभी, तो रशियन फेडरेशन को इसमें से निकाल दिया, वो G7 बन गया। फाइन, ये रिच कंट्रीज का ग्रुप है, दैट इज G7। जीएसटी क्या है, ये काफ़ी बड़ी मात्रा में चर्चा में 2017 की प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी 2017 राइट, इस पर सवाल आया था। पहले इस कंसेप्ट को देखेंगे हम। शुरुआत में क्या था, जीएसटी के आने के पहले गुड्स के लिए अलग टैक्सेस लगाए जाते थे एंड सर्विसेज के लिए अलग टैक्सेस थे। सो नाउ दोज हैव बीन सबज्यूम्ड एंड ओनली वन टैक्स, दैट इज वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इसका सिंबल स्लोगन ही वही है। नाउ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड इन जुलाई 27 बाय अबॉलिशिंग वैरायटी ऑफ टैक्सेस वगैरह वगैरह हमने देखा। अंडर जीएसटी टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स इज नॉट imposed on the price of that particular good, rather at each stage of supply the tax is imposed on the basis of value addition। तो जितनी कीमत बढ़ी है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, ये पेन है, ये है 70 रुपीज, अब इस पर टैक्स लगाया 10%, तो आगे जीएसटी लगेगा इस 10% पे, नॉट ऑन दिस 70 रुपीज, रिमेंबर केयरफुली, ओके। तो जो वैल्यू एडिशन हो गया उस पर टैक्स लगेगा, वैल्यू एडिशन हो गया उस पर टैक्स लगेगा। सप्लायर, डीलर, सब डीलर, ऐसे जो चेन है उस चेन के हिसाब से। सो बेसिकली डिफरेंट स्लैब ऑफ टैक्स रेट सच एज 0%, जीएसटी के टैक्स रेट है 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% मतलब जिस पर कोई भी, वो सारे आइटम्स उसमें इंक्लूड रहेंगे जिस पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। फाइन। 5% जो रेस्टोरेंट में वगैरह आपको दिखाई देगा, आप कभी चाय लेने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि वो जीएसटी लगाएंगे, आप रोटी पर भी लगने लगा है, राइट। तो गब्बर सिंह टैक्स, सम पॉलिटिशियंस कॉल इट एज अ गब्बर सिंह टैक्स आल्सो, बट दैट इज अ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, वी हैव नथिंग टू डू विथ इट, दैट इज देयर वर्क एक्चुअली। फाइन। अब है इसमें क्या है, दैट इज imposed on almost goods and services, the slab is same throughout the country, ये सेम होता है, टर्नओवर पे होता है, फिर कितना जीएसटी लगाएंगे, क्या करेंगे। तो सारे पहले सर्विस टैक्स था, सेल टैक्स था, एक्साइज टैक्स था, सारे को हटा के खाली जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया और ये यूनिवर्सल टैक्स भारत में रहेगा, ये इसका पर्पज है। फाइन। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी। सो व्हाट इज ग्रेच्युटी अमाउंट, आपने देखा होगा इस सरकार में जो गवर्नमेंट, those who are working in as a government servant, so they use this word, it is the amount of money given by the employer to the employee at the time of retirement, at the time of retirement। तो जितने भी साल आप सरकार की सेवा करेंगे, फिर रिटायर होने के बाद certain sum of money will be given to you because you have rendered the service and prime period of your life to the government or government activities। For that purpose you will be rewarded in the form of gratuity amount, बराबर। फाइन। जीडीपी हमने देखा है ऑलरेडी, इस पे जीडीपी पे बात हो चुकी है। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन ईयर रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप। तो भारत में हमारे जोग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उसकी जो टोटल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी। जीवीए क्या होता है, इस पर भी बात हुई है हमारी। Sum of country GDP and net of subsidies and taxes in the economy. So GVA is GDP plus subsidies minus indirect taxes. Very important definition. बस इतना ध्यान में रखो। Gross value added is equal to GDP। तो GDP जो हमारा है उसमें क्या ऐड करेंगे, सब्सिडी, जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसको ऐड करो, उसमें से क्या माइनस करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो। तो जितना आपको नेट मिलेगा दैट विल बी द जीवीए। जीवीए गिव्स मोर रियल पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी देन दैट ऑफ द जीडीपी। फाइन। नेक्स्ट, हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन नॉर्मली लिविंग टुगेदर एंड टेकिंग फूड
फ्रॉम कॉमन किचन, इसको हाउस होल्ड बोला जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर कोई सवाल आने वाला नहीं है, ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होता है? तो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू इंपोर्ट गुड्स इनटू अ कंट्री। तो भारत सरकार से आप कुछ परमिशन मांगते हो, किस लिए? इंपोर्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ठीक तरह से समझिएगा। ये पूछा जाता है सवाल, इस पर मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी। ये कंसेप्ट क्या है? बेसिकली हमने इंपोर्ट देखा, जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना है उसको। पॉलिसी ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इन विच इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज जनरली सब्स्टिट्यूटेड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो भारत में जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, तो उसका प्रोडक्शन हम हमारे यहाँ पे ही करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ओके, थ्रू इंपोर्ट कंट्रोल्स, टैरिफ एंड अदर रिस्ट्रिक्शंस विद व्यू टू एनकरेज डोमेस्टिक इंडस्ट्री। क्यों करना है ऐसा? हमें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना है। ग्राउंड्स ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट, तीन मुद्दे हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इम्पेटस करना, स्पीड अप करना। नंबर 2, सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा देना। व्हाट इज सेल्फ सफिशिएंसी? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी said in a speech that we have to give importance to the policy of आत्मनिर्भर भारत, and that is nothing but import substitution। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया अब import substitution क्या है। तो वो मेक इन इंडिया इज वेरी गुड एग्जाम्पल एक्चुअली, मेक इन इंडिया। अब ये थोड़ा सा हटके है, अलग है, कि बाहर के लोगों को हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्ट करो, यहाँ पे ही चीजें पैदा करो, दैट इज मेक इन इंडिया। आत्मनिर्भर भारत। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये डिफिनेशन काफी बार पूछा गया है प्रीलिम्स में। इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1। तो 0 to 1 ईयर के बीच में जो बच्चों की डेथ होती है, दैट इज कॉल्ड IMR, पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ दैट ईयर। तो 1000 बच्चों में कितने बच्चे 1 साल पूरा करने से पहले ही एक्सपायर हो गए, ओके, उनकी डेथ हो गई। सो दैट इज कॉल्ड एज IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बस ध्यान में रखो इसको, IMR पर 1000 में है, ये ध्यान में रखना है। पर 1000 मतलब 1000 बच्चों में से कितने बच्चे उनकी डेथ हो गई, इस हिसाब से IMR। अब आगे है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, सस्टेन राइज इन जनरल प्राइसेस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तुओं की और सेवाओं की जो कीमतें बढ़ती जाती हैं। अब सस्टेन राइज मतलब कॉन्टिन्यूसली कीमतें बढ़ती जाती है, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। ओके, सो गाइज वी हियर इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो चुकी है ऑलरेडी, हमने देखा है व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस। जब मैंने फॉर्मल सेक्टर एंटरप्राइजेस आपको बताया था, तो 10 से कम लोग जहां पे काम कर रहे हैं उसको इनफॉर्मल सेक्टर वाले एंटरप्राइजेस कहा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो बेसिकली इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि वेयर द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटेट फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद अदर कंट्रीज। भारत सरकार बाकी कंट्रीज के साथ जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं, उसको इफिशिएंटली बढ़ावा देने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। इनविजिबल्स का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट में 2 चीजें, विजिबल्स है और इनविजिबल्स है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैपिटल अकाउंट का पार्ट क्या है, करंट अकाउंट का पार्ट क्या है, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मिलके बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। अब इसमें जो हमें देखना है, इनविजिबल क्या होता है? वेरियस आइटम्स एंटर इन द करंट अकाउंट। वही इनविजिबल्स की जब बात चलेगी तो करंट अकाउंट आएगा। ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, सम ऑफ विच आर नॉट विजिबल गुड्स। इनविजिबल्स आर मेनली सर्विसेज। तो पहली बात इसमें आएगी, जितने भी सर्विसेज है वो यहाँ पे है, लाइक टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट बाय शिपिंग और एयरवेज, ठीक है, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। फाइनेंशियल सर्विसेज, दे आल्सो इंक्लूड गिफ्ट सेंट अब्रॉड और रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो कुछ लोग आपको बाहर से कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, आप बाहर के लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, और प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कुछ पैसे भेज रहे हैं कुछ लोग आपको, आप भेज रहे हैं उनको। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड डिविडेंड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इनविजिबल्स में क्या क्या है, ठीक है। तो आपको देखना है गिफ्ट, ठीक है, सर्विसेज, नंबर 1 सर्विसेज, नंबर 2 गिफ्ट्स, नंबर 3 प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इसको रेमिटेंसेस भी कहा जाता है, रेमिटेंसेस, फाइन। देन गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट को कुछ ग्रांट मिलती है, बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जाएगा, आएगा ये सवाल एग्जाम में, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इनविजिबल पार्ट ऑफ द करंट अकाउंट, ये पूछा जाता है। नंबर 1 सर्विसेज, नंबर 2 गिफ्ट, नंबर 3 प्राइवेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, नंबर 4 गवर्नमेंट ग्रांट्स, इंटरेस्ट, भारत सरकार ने किसी कंट्री को कोई लोन दिया है एंड द इंटरेस्ट अर्नड ऑन दैट लोन कम्स और बिकम्स अ पार्ट ऑफ इनविजिबल्स। कुछ प्रॉफिट मिला है आपको किस कोई लेन देन के व्यवहार पे, ट्रांजैक्शन पे, डिविडेंड मिलता है, तो इतनी सारी 5-6 चीजें दैट इज पार्ट ऑफ इनविजिबल्स, फाइन। लेबर लॉज, क्या होता है लेबर लॉज, ये लेबर के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लेबर लॉज। लैंड रेवेन्यू और लैंड सेटलमेंट, ये पहले के ज़माने में था, ये हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमी इतना ज़्यादा। तो 2-3 चीज़ें हैं, माहलवारी सिस्टम है, फाइन, जमींदारी सिस्टम है, रोजगारी सिस्टम है। सो यू स्टडी इन हिस्ट्री, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, the number of years when a newborn infant would live if prevailing pattern of age specific mortality rate at the time of birth were to stay the same throughout the child's life। हम कितने साल तक भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मान लीजिए कि 90 साल, तो ये जो एज पैटर्न अभी चल रहा है उस हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक कोई भी बच्चा आगे जाके जिंदगी गुजार सकता है, कितने साल तक जी सकता है, हाउ वुड लॉन्ग ही लिव हिज लाइफ, ये तय करना, दैट इज कॉल्ड एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फाइन। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हमने जैसे कहा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हमने पढ़ा IMR को, तो वैसे ही IMR MMR है। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यू टू चाइल्ड बेयरिंग बाय द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स बाय द सम ऑफ लाइव बर्थ्स एंड द फीटल डेथ इन अ गिवन ईयर। तो मान लीजिए ये नापा जाता है 1 लाख मदर, इसमें डिलीवरी के दौरान कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई, राइट, दैट इज कॉल्ड एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये ध्यान में रखो, 1 लाख आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर्स किसे कहा जाता है, इस पर 2017 में प्रीलिम्स में सवाल था, क्योंकि उस टाइम पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट पूछा गया था। देखो, मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR, banks or financial institutions known as investment bankers that specialize in advising the companies and managing their equity and debt requirement called as merchant bank, okay, referred to as portfolio management through flotation and sale or purchase of stocks and bond। वही जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो खास करके स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बैंकिंग करेंगे, स्टॉक मार्केट सेल करेंगे, बाय करेंगे स्टॉक्स को या बॉन्ड्स को सेल करेंगे, बाय करेंगे, दोज आर कॉल्ड एज मर्चेंट बैंक्स, ओके। सो दे आर बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ओके, दे स्पेशलाइज इन एडवाइजिंग द कंपनीज एंड मैनेजिंग देयर इक्विटी। तो कौन से शेयर्स आपको लेने हैं, कौन से नहीं लेने, इसके बारे में वो एडवाइस भी करती है, दे आर कॉल्ड एज मर्चेंट बैंक। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, prosperity to fall in or a propensity to fall in, it affects a person's work by making him or her temporarily disabled। prolonged morbidity may lead to mortality। तो कई समय तक कोई बंदा बीमार रहता है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता, उसको कहा जाता है morbidity, ओके। और बाद में ज़्यादा देर तक ये morbidity रही तो वो mortality पर भी, मतलब वो मर भी सकता है, ये एक डेफिनेशन है। mortality rate वो जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो कोई नई बात नहीं है उसमें, पर 1000 पीपल से कितने लोग, एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, तो पूरे साल में 1000 लोगों में कितने लोगों की मृत्यु होती है, दैट इज कॉल्ड एज मोर्टेलिटी रेट,
MRTP एक्ट, ये काफ़ी चर्चा में हुआ करता था पहले, 1969 का एक्ट है। मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, फ्रेम्ड टू प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस मतलब कुछ कंपनियां सिर्फ वो कुछ चीज़ों को बनाती थी, वो प्रोडक्ट्स को बनाती थी, तो इसको रोकने के लिए एक 1969 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था जिसको कहा जाता है MRTP एक्ट। बाद में जाके इस एक्ट को कंपनीज एक्ट और कंपटीशन एक्ट 2002 इसमें तब्दील किया गया। द कंडक्ट और बिजनेस प्रैक्टिसेस ऑफ फर्म्स दैट आर नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर क्या होता है कंपनी का, वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, दैट इज नॉट एम्ड एट पब्लिक इंटरेस्ट। सो टू प्रिवेंट दैट पॉलिसी, government of India adopted or implemented an act that was nothing but an MRTP act, monopolies restrictive trade practices। multilateral trade agreement, दो टाइप के ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। बायलैटरल होता है, बायलैटरल मतलब जैसे इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इसको कहा जाता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। मान लीजिए कि भारत और कोई और ग्रुप ऑफ नेशंस है, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया, ट्रेड एग्रीमेंट मेड बाय अ कंट्री विथ मोर देन 2 नेशंस टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। कोई ग्रुप है, मान लीजिए भारत, इंडिया एंड सार्क इसके बीच में, या इंडिया एंड आसियान इसके बीच में कोई ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट ट्रेड एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। फाइन। National product or income, value of goods and services produced in a country plus income from abroad। When we talk about national income, इस पर बात हुई है हमारी, तो ज़्यादा दोहराऊंगा नहीं मैं इसे। नेशनल इनकम प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो हमारे देश में, हमारी कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, प्लस बाहर के लोगों से भी जो हमें इनकम आ रहा है, वो भी नेशनल इनकम में है। ट्रांसफर ऑफ, फिर नेशनलाइजेशन नाम की एक चीज़ है। What is nationalization? Transfer of ownership from private sector to public sector. Okay. So nationalization private sector to public sector में क्या करना है, ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाता है। This involves takeover of companies owned by individual or group of individual by either state or central government. Some context it involves the transfer of ownership from state government to central government also. It's called nationalization. तो डीनेशनलाइजेशन अलग होता है, वहाँ पे पब्लिक टू प्राइवेट में जाते हैं। हम डिसइन्वेस्टमेंट में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे हमने बात की थी 1991 में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत सरकार ने अडॉप्ट की थी, तो ये गेम चेंजर पॉलिसी थी, जिसके बाद भारत का जो इकोनॉमी का जो रुख है वो काफ़ी हद तक बदला हुआ है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लाइक फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। सो रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब, नॉन रिन्यूएबल मतलब दैट कैन नॉट बी रिन्यूड। फॉर एग्जांपल ऑयल, फॉसिल्स, देन मिनरल रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे कुछ समय के बाद, इनको रिन्यू नहीं किया जाता है। रिन्यूएबल मतलब क्या होता है, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो ये सोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल है। दिस इज कॉल्ड एज रिन्यूएबल सोर्सेज। फाइन, यस। नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ अदर देन टैक्सेस। तो हमने देखा कि टैक्सेस तो गवर्नमेंट लगाती है, तब उसको टैरिफ बोलते हैं। अब नॉन टैरिफ मतलब क्या है? टैक्सेस के अलावा भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। फॉर एग्जांपल दे मेनली इंक्लूड रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। तो किस टाइप के गुड्स आप लाओगे वो तय करेगी सरकार, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। कितनी क्वांटिटी में वो गुड्स लेके आएंगे उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस पर सवाल ऑलरेडी प्रीलिम्स में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वैल्यू or action and is equal to the value of the foregone alternative choice of action. I repeat it,
Opportunity cost, it is defined with respect to a particular value or action and is equal to the value of foregone alternative choice of action. तो with respect to a particular value, कोई भी चीज़ की जो वैल्यू है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब इस पर एक और MCQ भी है, आगे जाके मैं इस पर भी बात करूंगा आपसे. पेंशन आपको मालूम है कि जो रिटायरमेंट के बाद मंथली पेमेंट मिलता है आपको, दैट इज कॉल्ड एज पेंशन. पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम को जो है वो डिवाइड करो बाय इट्स पॉपुलेशन, तो वो मिलेगा आपको पर कैपिटा इनकम. एक गांव में मान लीजिए 1000 लोग रह रहे हैं, उस गांव की आय है 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 1000, इट इज कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम ऑफ दैट विलेज. फाइन. परमिट लाइसेंस राज, ये टर्म जो थी, इट वॉज टू डिनोट द रूल्स एंड regulations framed by government to start, run and operate an enterprise. कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है, उसको चलाना है, किस तरीके से चलाना है, उसके लिए कुछ रूल्स सरकार ने बनाए थे. दैट इज कॉल्ड एज परमिट लाइसेंस राज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये जो है ये बंद कर दिया परमिट लाइसेंस राज. 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई तो इसको हटा दिया गया. फाइन. प्लानिंग कमीशन ये अब नहीं रहा है, इसके जगह पे आया है नीति आयोग. तो बेसिकली ये फॉर द प्लानिंग प्रोसेस, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारा हम देखेंगे. इसको थोड़ा सा ठीक तरह से समझो भी एग्जैक्टली क्या था ये चीज़. जब से नरेंद्र मोदी जी आ गए तो इन्होंने 2015 में इसको हटा दिया एंड इसकी जगह पे आया नीति आयोग. नीति आयोग, ठीक है. अब ये क्या है? It was an organization set up by the government of India responsible for making assessment of all resources of country, augmenting deficient resources, formulating plans. Formulation of plans is the prime responsibility of the planning commission for the most of the effective and balanced utilization of resources. Effective and balanced utilization of resources. जितने भी resources आपके पास हैं उसको effectively कैसे use किया जाएगा. एंड डिटरमाइनिंग प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को डिसाइड करना, सारे काम प्लानिंग कमीशन के थे. अब वो शिफ्ट हो गए सारे काम नीति आयोग के पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. फाइन. पॉवर्टी लाइन होती है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन सर्टेन मिनिमम एंड्स ऑफ अ पर्सन इंक्लूड्स फूड इनटेक ऑफ अ डेली एवरेज ऑफ 2400 कैलोरीज इन रूरल एरियाज एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज. तो ये डिसाइड करना, ये पॉवर्टी लाइन वाली बात हो गई. फाइन. प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, जो प्राइवेट में होते हैं खास करके उनको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट. प्रोविडेंट फंड क्या होता है? सेविंग्स फंड इन विच बोथ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉई. तो ये है कि कुछ पैसा आपके अकाउंट में हम डालेंगे, कुछ पैसा आपके अकाउंट में आप डालो, आपकी सैलरी से कट जाएगा, कुछ जो सैलरी से काट रहे हैं वो डालेंगे, कुल मिला के ये पैसा बाद में आपको मिल जाएगा. मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिवन टू द एम्प्लॉई व्हेन ही और शी रिजाइंस और इफ रिटायर्स फ्रॉम वर्क. रिटायरमेंट के बाद या उसके पहले भी आप रिजाइन करोगे तब भी ये पैसा आपको मिल जाता है. दैट इज कॉल्ड एज PF प्रोविडेंट फंड. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब जो सरकार के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट कोई भी है, तो उनके एस्टेब्लिशमेंट है, कुछ उन्होंने बनाए. दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट. फाइन. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस इन द फॉर्म ऑफ टोटल क्वांटिटीज और कोटाज इंपोर्ट ऑन इंपोर्ट्स. कुछ कोटा होता है, इंपोर्ट पे कुछ कोटा लगाते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कहा जाता है. व्हाई? टू रिड्यूस BOP डेफिसिट. बैलेंस ऑफ पेमेंट पे हमारा जो डेफिसिट है, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डेफिसिट है, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे. तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट है, इसका मतलब ये हुआ भारत सरकार जो इंपोर्ट कर रही है उसकी मात्रा बढ़ रही है, भारत सरकार जो एक्सपोर्ट कर रही है उसकी मात्रा कम हो रही है. इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डेफिसिट हुआ. इसको दूर करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री. दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे. फाइन. रेगुलर और सैलरीड एम्प्लॉय कौन होता है? जो काम करता है, जिसको सैलरी मिलती है. बकवास है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई देखने वाली चीज नहीं है इसमें. ठीक है. देन
रिन्यूएबल रिसोर्सेस पहले हमने देखा, फॉरेस्ट है, मतलब इनको कुछ कितना भी आप एक्सप्लोइट करोगे तो ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों की बात हो गई थी हमारी। दिस कैन बी रिन्यूड थ्रू नेचुरल प्रोसेस इफ दे आर यूज्ड वाइजली। तो ये भी है कि यूज्ड वाइजली, कुछ भी तरह से किसी भी तरीके से इस्तेमाल करोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। सार्क क्या होता है? ये एसोसिएशन ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। क्यों बनाया गया है? इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल्स ऑफ साउथ एशिया टू वर्क टुगेदर इन स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग. It aims to accelerate the process of economic and social development in member countries. तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, इसलिए सार्क को बनाया गया. फाइन. सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो खुद की फर्म स्टार्ट करता है उसे कहा जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड. सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? बहुत ही अच्छी टर्म है, इसका सिलेबस में प्रीलिम्स में जिक्र है. सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स करके एक आपको सिलेबस अगर आप प्रीलिम्स का देखोगे तो वहां पर मिलेगा. सोशल सिक्योरिटी इज अ गवर्नमेंट और प्राइवेटली एस्टेब्लिश्ड सिस्टम ऑफ मेजर्स which ensures material security for the elderly, disabled, destitute, widows and children. very 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 important. क्या क्या है देखो, elderly लोग, disabled लोग, destitute लोग, widows, children, इनके लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम. ओके, आई रिपीट, इट इंक्लूड्स पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, मैटरनल बेनिफिट, health care. These are the facilities given and this is called as social security. Okay, fine. Special economic zones करके एक टर्म है. What is special economic zones? हमेशा चर्चा में रहती है. It is a geographical region that has economic laws different from country's typical economic laws. तो सेज का मतलब क्या होता है? आमतौर पे जो इकोनॉमिक लॉज होते हैं तो इनके लिए अलग लॉज होते हैं. क्यों होते हैं हम देखेंगे. द गोल इज टू इंक्रीज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इसका पर्पज है कि उस एरिया में भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. सेज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग द चाइना, इंडिया, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान एंड ऑल दोज थिंग्स. तो बेसिकली सेज में क्या होता है, इनकम टैक्स और अदर टैक्सेस जो हैं वो टैक्सेस में यहाँ पे कंसेशन दिया जाता है सेज डेवलपर्स को. सेज आर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर्स और बाय प्राइवेट सेक्टर्स आल्सो. इंडिविजुअल प्रमोटर्स आर और इंडिविजुअल्स कैन आल्सो डेवलप सेज. तो इसमें कंसेशन, इकोनॉमिक कंसेशन ज़्यादा होता है, बस इस बात का ख्याल रखिए. तो ये सारा था, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में हमने जो देखे हैं. अब इकोनॉमी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जितने लेक्चर हमें लेने थे वो हमने खत्म कर दिए. अब जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का जो जितना, ये भी प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही था, लेकिन अब टॉपिक वाइज हम बात करेंगे और सिलेबस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे. अप्रोच ये रहेगा, जो टॉपिक खत्म किया है उस पर जो पीवाईक्यूज हैं उसको भी हम देखेंगे ताकि आपको कोई कठिनाई आने वाली प्रीलिम्स में नहीं हो पाएगी. थैंक यू सो मच गाइज.